আসসালামু আলাইকুম। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও প্লে করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखविन भालो लगबे। आज मेरे साथ हैं वसीम अली। तो आज बात करने जा रहे हैं जी, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजद के कदमों में क्यों बैठ गए। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी लेकर G20 समिट में पहुंची कि तमाम ताकतवर तरीन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो सदर हैं, वो बांग्लादेश के कदमों में आ चुके हैं। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी कि के तमाम बांग्लादेश के साथ मिल गुल गए। आज इसी हवाले से बात करने जा रहे हैं कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के कदमों में बैठ गए। इसके ऊपर भारत में भी बात हो रही है और दुनिया भर में बात हो रही है। तो जी वसीम भाई, क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के हवाले से? जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, ये बहुत चौंका देने वाली हैं। ये वाकई बहुत बड़ी बांग्लादेश के लिए मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक तो सबसे पहले तो इनके लिए ये एजाज़ था कि उनको एज अ गेस्ट जो है ना G20 समिट के अंदर बुलाया गया। और उसके बाद जितने भी बड़े प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, जिनमें सरे फहरिस्त मैक्रोन आते हैं, फ्रांस के सदर, उसके बाद जो बाइडन हैं, फिर ये जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। ठीक है, अब उसी हवाले से ये जो वीडियो है, वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इसके बारे में। उसी हवाले से ये वाली वीडियो है कि जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं वो शेख हसीना के कदमों में जाकर क्यों बैठ गए। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3। শেখ হাসিনার পায়ের কাছে কেন বসলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক? যে ছবি ভাইরাল হলো সেটা কি আদৌ সত্যি? ঋষি সুনাকের সঙ্গে বাংলাদেশের G20 মাঝে কোন বড় ডিল হলো? ফ্রান্সের ম্যাক্রোকে হাসিনা যা উপহার দিলেন তা মনে রাখতে হবে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে কোন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছেন প্রত্যেকটা মুহূর্তে, সেটার জন্য বোধহয় এই একটা ছবি কাফি। অবশ্য ক্রেডিটের 50% ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাককেও দিতে হয়। G20-তে যেখানে একের পর এক ডিল স্বাক্ষর করতে, বৈঠক করতে ব্যস্ত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, সেখানে শেখ হাসিনাও যেন বাংলাদেশের হয়ে এই G20 সম্মেলনে বড় সড় ছাপ রাখলেন। তাও আবার তিনি বা তার দেশ সরাসরি G20-র সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক হাসিনার পায়ের কাছে কেন বসলেন? এমন কি কথা তিনি বললেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে? যে ছবি G20-র মাঝে ভাইরাল হয়েছে সেটা ভুয়ো যে নয় তা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ব্রিটেনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বেশ শক্তপোক্ত, এটাই তার প্রমাণ। তবে ঋষি সুনাকের এমন ব্যবহার যেন নজির তৈরি করে দিল এবার ভারতের মাটিতে। G20-র মাঝে রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে দেশের দুই রাষ্ট্রপ্রধানের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চেয়ারে বসেছিলেন। আর যাতে হাসিনাকে চেয়ার ছেড়ে না উঠতে হয়, তিনি বসে বসেই কথা বলতে পারেন, তার জন্য হাসিনার ঠিক সামনে হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। তার এই ব্যবহারকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন সকলে। বয়সে বড়দের কিভাবে সম্মান দিতে হয় তা ঋষি সুনাকের কাছ থেকে শেখা উচিত, এমনটাই বলছেন নেটিজেনরা। আবার অনেকে এটাও বলছেন ঋষির কোনো অহংবোধ নেই, বড় মানুষরা বোধ হয় এমনই হন। তবে এক্ষেত্রে কূটনৈতিক বিশেষজ্ঞদের দাবি, এর থেকে সুনাকের চারিত্রিক দিক যেমন প্রকাশ হচ্ছে, সে সঙ্গে এটাও প্রমাণিত বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ঠিক কতটা গুরুত্ব রয়েছে ব্রিটেনের কাছে। এদিকে ভারতের সঙ্গে হয়তো খুব শীঘ্রই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারে ব্রিটেন। মোদির সঙ্গে বর্তমান সমস্যাগুলো মেটানোর জন্য রীতিমতো কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে দুটো দেশের। ফ্রান্সের ম্যাক্রো বাংলাদেশে গেলেন, শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক হলো, কিন্তু তারপর কোন খবর বেরিয়ে এলো? দুই রাষ্ট্র নেতার মিটিং কি আদৌ ফলপ্রসূ হলো? তথ্য বলছে 1990 সালে ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সোয়া মিতেরার পর ইমানুয়েল ম্যাক্রো এমন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট যিনি দ্বিতীয়বার বাংলাদেশ সফরে এলেন। আর এই ম্যাক্রোর আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি রাখলো না ঢাকা। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টকে 3টে বই উপহার দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
এছাড়াও জানা গিয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি স্যাটেলাইট ও উড়োজাহাজ বিষয়ে এয়ারবাসের সঙ্গে দুটো এবং বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য স্বাক্ষর করা হয়েছে দুটো ডিলে। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो। सबसे बढ़कर ये कि बहुत अरसे तक हिंदुस्तान के ऊपर बरतानिया ने हुकूमत की और आज के टाइम पे देखें तो बरतानिया के ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत है, क्योंकि जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उनका ताल्लुक इंडिया से है और वो मज़हब के लिहाज से हिंदू हैं और साथ ही साथ बांग्लादेश के कदमों में हिंदुस्तानी, वो भी बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऐसी क्या छड़ी है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के पास कि फ्रांस का सदर बांग्लादेश आ जाता है 32 साल बाद। उसके बाद देखें तो बरतानिया का वज़ीर आज़म बांग्लादेश के कदमों में बैठ जाता है। साथ ही साथ देखें तो अमेरिका का जो सदर है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीर ले रहा है। तो ऐसी क्या वजूहत हैं? वसीम भाई क्या कहना चाहेंगे? बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश के कदमों में बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो बरतानिया के सदर हैं, मैंने रिसेंटली उनकी ट्वीट पढ़ी थी। उनका ये कहना था कि जो मेरी एक बीवी और 2 बच्चियां हैं, हम बड़ी देर से जो है ना शेख हसीना को फॉलो कर रहे हैं और अच्छा। हमारे लिए इंस्पायरेशन है। ये क्या बात। उनका कहना है कि पूरी फैमिली के लिए जो शेख हसीना है ना वो हमारे लिए इंस्पायरेशन है। और उनका ये भी कहना था कि मेरी एक बेटी है जो पिछले साल मैंने जिसको ऑफिस के अंदर मैं लेके गया हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि वो शेख हसीना जैसी एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक जो है ना वो लीडर बने। तो मैं उनके लिए ये दुआ करता हूँ कि वो शेख हसीना पर जाएं। तो नाज़रीन, बहुत बड़ी बात है शेख हसीना के लिए कि आखिर उनके अंदर क्या ऐसी बात है कि हर बंदा जो है ना, हर जितने तगड़े प्राइम मिनिस्टर हैं जितने बड़े, वो अब इनको फॉलो कर रहे हैं और अब इनके साथ मिलना चाह रहे हैं, अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाह रहे हैं। हर बंदे को अपना मफाद हासिल होता है और जैसे बांग्लादेश को भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके लिए बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा ये कर दी हैं कि लोग खुद चलकर उनके पास आ रहे हैं और उनको जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो खुद उनको मुहैया हो रही है। सबसे बढ़ के ये बात है कि फ्रांस का जो सदर है वो 32 साल बाद बांग्लादेश की सरजमीन पे उतरा है और क्या कमाल का उसका वेलकम हुआ है। उसके बाद देखें तो G20 ममालिक के सरबराही में जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद गई हैं तो एक अलग ही रंग से बांग्लादेश नजर आया है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर एक अलग ही रंग से नजर आई हैं और तमाम के तमाम जो बड़े ममालिक हैं जिनका शुमार दुनिया की टॉप इकोनॉमी में होता है वो बांग्लादेश के पास आ रहे हैं, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के पास आ रहे हैं। चाहे बरतानिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे फिर कोई भी मुल्क हो। फ्रांस अब देखें तो बांग्लादेश उतर चुका है। 32 साल बाद बांग्लादेश के अंदर फ्रांस के सदर का ये विजिट हुआ है, तो ये बांग्लादेश की बड़ी कामयाबी है। आप इसको कह सकते हैं कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी कामयाबियां समेट कर इस जी बहुत बड़ी कामयाबियां समेटी हैं इस G20 समिट के अंदर। और जितनी बांग्लादेश ने अपनी वहां पर कामयाबियां जीती हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत को भी इतनी कामयाबियां मिली होंगी। नहीं, भारत की तो बात ना करें, भारत को भी बहुत ज्यादा सबसे बड़ा उनका जो मुआहिदा हुआ है, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर CPEC है, CPEC से भी बहुत बड़ा मुआहिदा हुआ है जो यूरोप तक जो राहदारी उनकी हुई है ना, वो वाला मुआहिदा, वो तो चलो एक अलहदा बात है, वो एक डेवलप कंट्री थी बनिस्बत बांग्लादेश के। लेकिन बांग्लादेश ने इस मौके से फायदा उठाते हुए अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर लिए हैं। कई ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बना लिए और कई ममालिक अब बांग्लादेश उतर रहे हैं 32 साल बाद। सबसे बड़ी वजह, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि सबसे पहले मैक्रोन जो है वो बांग्लादेश का विजिट करेंगे। अब उसके बाद जराए के मुताबिक अगले कुछ दिनों के अंदर कुछ और प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ और प्रेसिडेंट हैं जो बांग्लादेश का विजिट करेंगे और बहुत बड़े मुआहिदों पर उनके दस्तखत होने जा रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह। Just leave in comment.